everyone, welcome to Shriram IS. In 1 PYQ a day series, today we are going to talk about internal security questions. So this particular question appeared in year 2024, okay, and this is for 15 marks. Question is, India has a long and troubled border with China and Pakistan, fraught with contentious issues. A statement is given. Then the directive used is examine the conflicting issues and security challenges along the border. Also give out the development being undertaken in these areas under the Border Area Development Program BADP and Border Infrastructure and Management Scheme. Right? Question is quite straightforward. 15 mark. We have two countries given, so let's just talk about the initial body part, a division of it, right? So the core demand, India, it's around the border issue, India, China, India, Pakistan, right? So when you have a border issue, they're talking about examining conflicting issues. So you have to examine conflicting issues and security challenges, right? Overall, there has to be a division of a question. Besides that, second part, development undertaken, right? So development undertaken under Border Area Development Program and Border and Infrastructure Management Scheme, right? This is second part of it, correct? This is the whole division. Now understand, question clearly says this border fraught with contentious issues. हिंदी में क्या लिखा है यहाँ पे? विवादास्पद मुद्दे है, because border is there. Now when you talk about a challenges, issues, conflicting issues, understand, border है between two states, तो few issues may be from the state factor, है ना, state factors, and few issues may be from the non-state factors, and few allegedly instigated or maybe supported by the state factors to here invoke the non-state factors. ठीक है, तो ये एक ब्रॉडर डिवीजन होता है, इसे क्या हम लिख सकेंगे, राइट? एंड एज द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट इश्यूज, बहुत सारे मुद्दे हैं, बिकॉज बॉर्डर तो एक ही है. सो यू कैन टॉक अबाउट डिफरेंट इश्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटेस्ट वन, ऑफ कोर्स द कंटेम्प्रेरी वन, है ना. यू कैन गो बैक, बट 15 मार्कर है, सो मेनी डिवीजन, तो उसके अराउंड ही आपको इसका आंसर लिखना होगा. लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में इफ यू नो लेंथ ऑफ द बॉर्डर, कहां पे? इंडिया, पाक एंड चाइना, आप मेंशन कीजिए. फैक्चुअल है, ठीक है. इफ नहीं, इफ यू डोंट नो, सिंपली टॉक अबाउट अ बॉर्डर शेयर्ड बिटवीन टू कंट्रीज लाइक इंडिया, पाक. We have LOC, right? We understand that there is a line of control between India and Pakistan, then India and China. We have LAC, line of actual control. You have multiple ways of writing it. Introduction में if you wanted to mention the Radcliffe line or maybe Macmahon line, it's up to you. Length लिख दीजिए, आप सिंपल LOC LAC के फॉर्मेट में लिख दीजिए, बिकॉज लॉन्ग ट्रबल्ड बॉर्डर. यस, यू कैन ऐड
बिकॉज लॉन्ग ट्रबल्ड बॉर्डर बोला है ना, तो यू कैन जस्ट कंटेक्सचुलाइज इट बाय मेंशनिंग हिस्टोरिकल डिस्ट्रस्ट. अब हमें पता है द बाउंड्री लाइंस वर ड्रॉन बाय द ब्रिटिशर्स, है ना. अब वो ब्रिटिशर्स ने ड्रॉ की थी, दैट्स वाई हिस्टोरिकल डिस्ट्रस्ट तो है. नो कंट्री इज रेडी टू म्यूचुअली रिकॉग्नाइज, है ना. रिकॉग्नाइज कर लिया होता तो प्रॉब्लम ही नहीं होती. सो एनी ऑफ इट कैन फिट इन टू द इंट्रोडक्शन. मल्टीपल वेज है लिखने के, राइट. देन द बॉडी पार्ट. Again, whenever you feel confused from where to pick the heading, right, pick it from the question itself. तो conflicting issues and security challenges, ठीक है. ठीक है, फर्स्ट इंडिया चाइना का लिख लेंगे हम. नाउ अंडरस्टैंड, एग्जामिन पूछा था, डायरेक्टिव यूज्ड इज एग्जामिन, है ना. व्हेन यू गो टू डॉक्टर, यू विजिट डॉक्टर फॉर सम हेल्थ इश्यूज, ही एग्जामिन्स यू, है ना. तो क्या होता है, ही स्पेशली लुक फॉर द अंडरलाइंग कॉजेस, सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ एज अ सिम्टम्स, एंड देन ही प्रोवाइड्स द क्योर पर से, राइट. अब बॉर्डर्स है, क्योर तो हमें पता है क्या है, क्योंकि सेकंड पार्ट एनी वे वी ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट द डेवलपमेंट अंडरटेकन थ्रू फ्यू स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, वो सोल्यूशन का पार्ट है, राइट. तो यहाँ पे इंडिया चाइना की अगर बात करते हैं तो रिसेंटली, लाइक ऑफ कोर्स वी हैव टू फॉलो द टाइमलाइन. अक्साई चीन लिखना है लिख सकते हैं, बट इफ यू टॉक अबाउट चाइना एंड इंडिया, understand few recent issues like Galwan Valley clash, ठीक है, 2020 this happened. Now why this happened? क्योंकि you have to examine. So tell here India, ये क्या करना चाह रहे थे, wanted to construct, or they constructed few road, no, some length at least. Why they wanted to construct, or they constructed the road? Of course, they wanted to enhance the logistic capability and connectivity. Logistic capability and connectivity, right? क्यों? Of course, we have a security challenge that even when it's a border shared with the China, they already started developing a model village kind of things which have a dual purpose use. देखिए, when you have to examine something, you need to know the underlying cause behind it. ऐसा तो नहीं है कि इंडिया को बस मज़ा आ रहा था and they wanted to construct the road. No, there is a cause for that, है ना. If India is developing a model village around or nearby the international borders which can be used, है ना, dual purpose, military purpose के लिए भी, civilian purpose के लिए भी, means along the borders China have a presence and it has a security challenge, of course, sovereign threat. एक बार हो चुका है अक्साई चीन, राइट, एरिया occupied by the Chinese. तो इंडिया स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग इट. थ्रेट तो हम वही लिखेंगे कि हाँ वहाँ सॉवरन थ्रेट हो सकती थी एंड दैट्स वाई वी हैव टू टॉक अबाउट इट, करेक्ट. एक चीज़ हो गई. देन यू हैव अ डोकलाम स्टैंड ऑफ. ऑफ कोर्स इट्स अ मिलिट्री स्टैंड ऑफ 2017. नाउ हियर व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. China constructed a road, but it's a tri-junction. India, भूटान, चाइना. अब सिक्योरिटी चैलेंजेस देखिए, ये कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज है, दीज आर द कॉन्फ्लिक्ट्स. बट नाउ सिक्योरिटी चैलेंज क्या हो गया यहाँ पे, वी हैव ए सिलीगुड़ी कॉरिडोर. चिकन नेक, नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी ये है, राइट.
नाउ सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑल्सो कि देखो अब नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी के लिए भी एक खतरा बन चुका था, ऑफ कोर्स वी नो अबाउट अ नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, ये भी एक सिक्योरिटी चैलेंज है। वाई? अब आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश, वहां पे स्पेशली तवांग रीजन, चाइनीज विल से कि अरे ये तो हमारा रीजन है, दे आर प्रोवाइडिंग देम स्टैपल्ड वीजा, दे वांटेड टू रिकॉग्नाइज दिस पार्ट, सॉवरेनिटी थ्रेट तो है, हमारे कंट्री का पार्ट है, राइट? सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है? दोज लैंड कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द इंडिया बाय फ्यूलिंग द इंसर्जेंसी। तो इश्यूज बहुत सारे लिख सकते हैं आप। इवन यू हैव द वाटर इशू, ब्रह्मपुत्र रिवर। नाउ अंडरस्टैंड, इफ यू टॉक अबाउट अ वाटर इशू, ब्रह्मपुत्र ट्रांस बॉर्डर रिवर है करके इश्यूज है, अगर बॉर्डर ही ना होती तो इश्यूज ही नहीं होते। नाउ दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम ओवर द अपर रिवेरियन स्ट्रेचेस अफेक्ट द फ्लो, इससे क्या होगा? सोशल अनरेस्ट हो सकता है, एंड सोशल अनरेस्ट तो एनीवेयर इट्स लिंक्ड विद दिस सिक्योरिटी थ्रेट। सोशल अनरेस्ट होगा तो क्या होगा? दे माइट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन और मे बी एलियनेशन, दैट फीलिंग ऑफ एलियनेशन मे मेक देम हेल्प द एनिमी स्टेट। तो देख रहे हो कैसे एग्जामिन होते जा रहे हैं, एक के बाद एक चीज लिख ली जा रही है। ये क्यों किया? बिकॉज दे वांटेड टू हिस्टोरिकली रिकॉग्नाइज किया हमारा हिस्सा है। वैसे ही सेम विद द तवांग, डोकलाम, दिस मेनी इशूज आर सफिशिएंट, क्योंकि 15 मार्क्स के लिए ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। देन इंडिया पाकिस्तान, अब बॉर्डर्स तो है, वी अंडरस्टैंड। तो सीज फायर वायलेशन, इससे क्या होता है? शेलिंग हो रही है बार बार, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ इज लॉस्ट। दोनों इस जगह पे क्या हो रहा है? सिक्योरिटी चैलेंजेस आ रहे हैं, इट इज पोजिंग अ सिक्योरिटी चैलेंजेस। क्यों? कंटिन्यूस शेलिंग, वो था ना हम बोलते हैं विनिंग द माइंड एंड हार्ट ऑफ पीपल। कंटिन्यूस सीज फायर वायलेशन होने के बाद व्हेन इट डिस्टर्ब्स देयर डेली लाइफ, they are starting to lose the faith in the established government. Of course they are now very vulnerable to the brainwashing. बच्चे पत्थर मार रहे हैं आर्मी पर्सनल के ऊपर, वाई? राइट? सो सीज फायर वायलेशन का भी एक बहुत बड़ा एक कंसर्न होता है, क्योंकि देर इज अ डिस्प्यूटेड बाउंड्री, राइट? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिविलियन लाइफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको थ्रेट है, ठीक है ना? द थ्रेट विल इम्प्लीकेट इनटू हेल्पिंग इन द फॉर्म ऑफ ओवरग्राउंड वर्कर, ब्रेन वॉशिंग द यूथ्स, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, स्किल डेवलपमेंट के लिए चीज़ें नहीं है, राइट? देन इन्फिल्ट्रेशन, देखो ये सीज फायर वायलेशन फ्रॉम द स्टेट एक्टर्स है ना, आर्म्ड फोर्सेस, अ पार्ट ऑफ द स्टेट। इन्फिल्ट्रेशन इलीगल है, कोई और कर रहा है, बट व्हाट इज हैपनिंग? पहलगाम हुआ था, राइट? दिस इज समथिंग वेरी न्यू विच वी नो। पहलगाम हैपेंड, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन से वही होता है। आपको पहलगाम लिखना है वो लिखिए, 2008 का मुंबई अटैक लिखना है वो लिखिए, है ना? उसमें कोई लिमिट नहीं है। सिक्योरिटी चैलेंजेस दोनों केसेस में थे। व्हेन देयर इज अ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इट अंडरमाइंस, क्या करता है ये? अंडरमाइंस credibility of established government. Again, security challenge. People living there may be not supporting the armed forces, right? Armed Forces Special Power Act, वो बोलते कि नहीं भाई यहाँ से चले जाओ। सिक्योरिटी चैलेंजेस आ गए। देन बॉर्डर है, वी आर वेरी क्लोज टू द गोल्डन क्रिसेंट ओवर देयर, देन देर इज अ इशू ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग, राइट? अब ड्रग ट्रैफिकिंग टेक्स द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। कैसे? यूथ डिसइंटीग्रेशन,
है ना, addicted to these drugs, the youth of Punjab or maybe nearby states, it affects. They may be involved into crime, helping the enemy nations, disturbing the social fabric. ठीक है, तो इश्यूज है, कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज है, बॉर्डर के वजह से बहुत सारे मुद्दे हैं. एंड देन देर अराइजेस अ सिक्योरिटी चैलेंजेस. ये सारा सिक्योरिटी चैलेंजेस है, ऑर्गेनाइज क्राइम, यूथ, गोल्डन क्रेसेंट पास में करके ड्रग ट्रैफिकिंग, राइट, बिकॉज इट्स अ बॉर्डर. ये कुछ चीज़ें हो गई. देन हमारा दूसरा पार्ट क्या था वहाँ पे, अ मेजर, लेट्स टेक, ओके, डेवलपमेंट बीइंग अंडरटेकन इन दीज एरियाज अंडर. ठीक है, तो डेवलपमेंट अंडर 2 प्रोग्राम्स, करेक्ट. सो लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड पार्ट. बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम. नाम को समझिए, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम. इस तरीके से अगर बात करें तो दे आर लुकिंग इनटू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स. मे बी दे आर कंस्ट्रक्टिंग रोड, स्कूल, राइट, हॉस्पिटल्स, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रा, electricity, infrastructures, right? So they are creating it. So many infrastructures being created. Border area development program. If you wanted to give some examples, we have one example, Karcham Chitkul Road, Himachal Pradesh. It borders with the China. अब देखिए, डिफिकल्ट है वो सब नाम याद रखना. प्रैक्टिकल अप्रोच तो यही है कि you understand the border area development means. And what we are lacking are infrastructure for the engagement of the local people and creating the livelihood option for them. यही कंसर्न है, तो we will do that only ना. नहीं भी पढ़ा होता और ये लिखते तो it stands correct. ये सही चीज़ है बिल्कुल लिखने के लिए, राइट. दूसरा क्या है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट. यहीं पे नाम लिखा है, उन्होंने दिया है ना, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम. अब ये स्कीम बेसिकली टॉक्स अबाउट द सिक्योरिटी, मतलब इसको कैसे इन्हांस करना है, राइट. सो BIM, बी पार्ट, यहाँ पे ए पार्ट हो गया, राइट. नाउ अंडरस्टैंड, अंडर these schemes they are basically strengthening the security infrastructure so that if there is any unforeseen threats or maybe possible threat, we can tackle those. इसके लिए क्या करना होगा? Yes, we have a border fence. यहाँ पे हमने फ्लड लाइट्स लगा दिए, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, या बॉर्डर आउटपोस्ट बोल दीजिए आप, कोई बात नहीं, है ना, बॉर्डर आउटपोस्ट. वी हैव थिंग्स, है ना, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन. अब टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन मतलब क्या है? मे बी यू आर हैविंग अ मोशन डिटेक्टर सेंसर, मे बी यू आर अप्लाइंग थर्मल स्कैनर्स. क्योंकि देखो 15 मार्कर के लिए क्वेश्चन क्यों ना हो, यू कैन नॉट राइट मच, क्योंकि इसमें एस्पेक्ट भी बहुत सारे पूछे गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू एग्जामिन चाइना, पाकिस्तान, 2 कंट्रीज, देन 2 डिफरेंट स्कीम्स, प्रोग्राम्स, है ना, वो भी लिखा गया है. You have to integrate these both into the answer, and when you will frame a statement out of it, that will be more than sufficient to cover the answer in 250 words. क्योंकि इंट्रो भी तो है. Then let's talk about conclusion. अब conclusion देखिए इसका कैसे कर सकते हैं. Either you can simply summarize, है ना, कि क्या गवर्नमेंट is taking precautionary measures and strengthening the border forces. ठीक है, बॉर्डर फोर्सेस एंड कम्युनिटी. ठीक है, क्योंकि हमने दोनों चीज़ कर रहे हैं.
बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ही इसी के लिए है ना, ताकि वो ब्रेन वॉश ना हो, अ सेंस ऑफ एलिनेशन शुड नॉट डेवलप, दे शुड एंगेज इन अ पॉजिटिव वर्क, है ना, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, सम काइंड ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड नॉट अ स्टोन थ्रोइंग एक्टिविटीज़। कम्युनिटी हो गया, बॉर्डर फोर्सेस के लिए हमने बता दिया, बॉर्डर फेंस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन हो रहा है, आप ड्रोन यूज़ कीजिए, है ना, मे बी इन फ्यूचर वी कैन एक्चुअली अप्लाई द AI फॉर द बॉर्डर सिक्योरिटी। तरीके हैं, एक तरीका ये हो गया। अल्टरनेट तरीका ये भी हो सकता है कि वी अंडरस्टूड दीज आर जस्ट अ मेजर्स, है ना, बट देखिए मेजर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, टैकल्स द इशू। अब बात समझिए, इशू का रूट कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है, डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का ये मेजर्स नहीं है फिलहाल, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नो मेजर्स फ्रॉम आर एंड एज अ कंट्री, व्हाट वी कैन डू फॉर आर पीपल, आर फोर्सेस। डिस्ट्रस्ट तो दो लोगों के बीच में है ना, टू कंट्रीज। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मीन्स टू अर्न द ट्रस्ट, राइट। जो है ना म्यूचुअल रिकग्निशन इज नॉट देयर, वी हैव टू मेक देम रिकॉग्नाइज आवर बॉर्डर्स एंड रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी। जब भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे दैट विल एक्चुअली सॉल्व द रूट कॉज, एंड व्हेन रूट कॉज इज बीइंग सॉल्व्ड, ये जो मेजर्स है विच यू आर टेकिंग टू टैकल द थिंग्स, दे मे बी इन प्लेस, बट अल्टीमेटली द सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विल इवेंचुअली रिड्यूस, है ना। तो ये थोड़ा बैलेंस तरीका हो गया लिखने का, ये तरीके से एक सिंपल तरीका हो गया, बट आइदर वे बात क्या है कि एग्जाम हॉल में क्या सोच सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंड नॉट समथिंग विच इज वेरी एडलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से तो कोई रिसर्च फाउंडर्स जो ऐसे ऑब्जर्वर्स होते हैं बड़े बड़े, वो आके बैठ के इसका आंसर बताए, नो दैट इज नॉट द वे, करेक्ट। सो विल गो विद द अप्रोच विच इज वायबल एंड प्रैग्मेटिक एंड इवन रिवॉर्डिंग, इससे क्रेडिट भी मिलेगा आपको अच्छा खासा, राइट। थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंस।